Hello guys, our today's topic is section 185 that mainly deals with the loan to director or to any other person in whom the director is interested. Friends, I would like to say that as we all know that this is one of the complicated section of Companies Act 2013. So I have prepared this video for making all this complicated thing in a easy manner, in a easy way. You can easily understand all the subsection of this section 185 in through this video. And I would like to say one more thing that Section 185 is framed by the government in such a way that it is providing some prohibitions. At the same time, it is also providing some relaxation and some exemption. See, prohibition is provided due to what? Prohibition is provided in this section for safeguarding the interest of the shareholders, and on the other side, the relaxation and exemption that is provided section that is due to the reason of ease of doing business. So it is this section is framed in such a way so that so that the company can also work in an easy way, and on the other side it should also it should also safeguard the interest of the shareholders. So so for knowing that, you have to watch this complete video, friends. Let's begin this video. Section 185 subsection 1 states that no any company shall directly or indirectly advance any loan including the book debt or give any guarantee or provide any security in connection with that loan. इट मीन्स दैट कि कोई भी कंपनी जो है ना डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो लोन नहीं दे सकता. डायरेक्टली यहाँ पे बोलने का ये मतलब हुआ कि डायरेक्टली आप लोन दे रहे हो, कोई भी कंपनी डायरेक्टली लोन दे रहा है, जो भी स्पेसिफाइड पर्सन या फर्म जिसके बारे में भी बोला जा रहा है डायरेक्टली उनको लोन दिया जा रहा है. एंड इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट कंपनी जो है वो लोन दे रहा है किसी और बंदे को, और वो बंदा क्या कर रहा है उस लोन को फिर लास्ट में डाइवर्ट कर दे रहा है वो डायरेक्टर को या जो भी स्पेसिफाइड पर्सन या फर्म है उनको कर दे रहा है. इनडायरेक्टली यहाँ कहने का ये मतलब है. तो यहाँ पे एज पर सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 ये बोला जा रहा है कि कोई भी कंपनी है ना ही वो डायरेक्टली और ना ही वो इनडायरेक्टली लोन दे सकता है. अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना ही वो गारंटी भी दे सकता है ना ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है. लोन हेयर इंक्लूड द बुक डेप्ट मीन्स डेटर. डेटर भी यहाँ इंक्लूसिव होंगे लोन में. तो अगर सपोज दैट कोई भी अगर कंपनी चाहता है कि अपने उस लोन के अमाउंट को, लोन दिया है डायरेक्टर को और उसको वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक डेप्ट एज अ डेटर दिखा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. in that case also section 185 subsection 1 will be applicable. So it prohibits the providing of loan and guarantee and whatever is given there. So basically section 185 subsection 1 states about it prohibits providing of loan and guarantee and security to the mentioned individuals and firms. जैसे कि किनको किनको नहीं दे सकते अपने loan guarantee and security. First person is that the director of the company. Any company cannot give loan to the director of the company. ना ही वो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को दे सकते हैं. रिलेटिव यहाँ पे जो है एज पर द सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट इट इज़ गिवन हेयर. सो रिलेटिव को भी अगर कोई रिलेटिव होता है डायरेक्टर का, इन दैट केस ऑल्सो कंपनी कैन नॉट गिव लोन टू सच रिलेटिव. अपार्ट फ्रॉम दैट पार्टनर इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड. सो डायरेक्टर के पार्टनर को भी लोन नहीं दिया जा सकता है. These are the person who are related to the director of the company directly. And apart from that holding company के director को भी we have to check. The company cannot give loan to the director of its holding company also. होल्डिंग कंपनी अगर जो है उनका जो डायरेक्टर है उनको भी यहाँ लोन देने के लिए मना किया गया है. और होल्डिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है उनके रिलेटिव को भी लोन नहीं दिया जा सकता है. Apart from that, partner of the director of holding company is also inclusive of this. So जो होल्डिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका अगर कोई पार्टनर है उसको भी लोन नहीं दे सकते.
ना ही गारंटी प्रोवाइड कर सकते, ना ही सिक्योरिटी उसके बिहाफ में प्रोवाइड कर सकते। सो दीज आर द पर्सन्स एंड अपार्ट फ्रॉम द पर्सन्स, यहाँ पे फर्म भी इंक्लूसिव है। यहाँ ये बोला जा रहा है कि वी कैन ऑल्सो, दिस सेक्शन ऑल्सो प्रोहिबिट्स द प्रोवाइडिंग ऑफ लोन और गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी फर्म इन विच एनी ऑफ द अबव मेंशन डायरेक्टर इज अ पार्टनर। अबव मेंशन डायरेक्टर यहाँ कहने का मतलब है डायरेक्टली डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड सेकेंड इज द डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। अगर किसी भी फर्म में हमारे कंपनी का डायरेक्टर जो है पार्टनर है, या डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है वो यहाँ पार्टनर अगर है किसी फर्म में, तो इन दैट केस ऑल्सो कंपनी जो है उस फर्म को लोन नहीं दे सकता। नॉट ओनली दिस, उसके रिलेटिव को भी लोन नहीं दे सकते। जो हमारा डायरेक्टर है अगर किसी फर्म में पार्टनर, और उस डायरेक्टर का रिलेटिव भी अगर उस फर्म में पार्टनर होता है, in that case also we cannot give loan to that firm. Apart from that, we cannot also provide the loan to the such firm in which relative of the director of holding company is inclusive. सो इन सिंपल वे हम लोग कैसे बोल सकते हैं, देखते हैं। हम लोग जो हमारा जो कंपनी है उस कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दे सकते, उस डायरेक्टर का जो रिलेटिव है उसको नहीं दे सकते। रिलेटिव में जैसे एज पर द सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट इज गिवन, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, son, daughter, mother, father, all these things are given there. You have to see what is the meaning of relative there. So ये जितने भी relatives हैं, इन relative को भी नहीं दे सकता कंपनी लोन, गारंटी या सिक्योरिटी। सो बेसिकली वर्ड हम लोग देख रहे थे कि कंपनी के डायरेक्टर को नहीं दिया जा सकता, उनके रिलेटिव को नहीं दिया जा सकता, पार्टनर ऑफ द डायरेक्टर जो है, डायरेक्टर का अगर कोई पार्टनर है उनको भी नहीं दे सकते। ये तो डायरेक्टर से रिलेटेड था डायरेक्टली। अब इसमें एक और चीज़ बोला जा रहा है कि अगर हमारे कंपनी का कोई होल्डिंग कंपनी है तो उस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनको भी नहीं दे सकते। उस डायरेक्टर का अगर कोई रिलेटिव है तो उनको भी नहीं दे सकते। उस डायरेक्टर का कोई पार्टनर है तो उसको भी नहीं दे सकते। ये था होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर से रिलेटेड। अब फर्म की बात करते हैं तो हम उस फर्म को नहीं दे सकते जिसमें हमारा डायरेक्टर जो है वहाँ पार्टनर है, हमारी कंपनी का डायरेक्टर जो है वहाँ पार्टनर है, या फिर हमारे कंपनी के डायरेक्टर का कोई रिलेटिव वहाँ पार्टनर है, या फिर हमारे जो होल्डिंग कंपनी का जो डायरेक्टर है वो वहाँ पार्टनर है, या फिर हमारे होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर का जो रिलेटिव है वो वहाँ पार्टनर है। all these are the people who all these are the person or the individual or the firm that is mentioned here as a prohibited one. No any company can give loan, guarantee or security to these specified individuals and firms. यहाँ इस सेक्शन में क्लियर कट बोल दिया गया है कि इन लोगों को जो कंपनी है वो लोन, गारंटी या सिक्योरिटी नहीं दे सकता। So basically section 185 deals with the prohibition. सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 में क्या बोला जा रहा है कि कंपनी कैन गिव एनी लोन, गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड बट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। यहाँ यही बोला जा रहा है कि कंपनी जो है दे सकता है। सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 1 में बोला गया था कि कंपनी लोन नहीं दे सकता, बट सबसेक्शन 2 में बोला जा रहा है कि कंपनी दे सकता है। और किनको दे सकता है? टू एनी पर्सन इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। उनको दे सकता है जिनके बारे में, जिस पर्सन के बारे में इस सेक्शन में, इस सबसेक्शन में डिफाइन किया गया है, उन लोगों को दे सकता है। बट उनको भी तभी दे सकते हैं सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, दोज कंडीशंस हैव टू बी फुलफिल्ड, देयर आफ्टर द कंपनी कैन गिव लोन टू दीज पर्सन्स।
ना ये पर्सन्स कौन है उनको देखते हैं। सी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनी प्राइवेट कंपनी हैविंग कॉमन डायरेक्टर्स और मेंबर। एक ऐसे प्राइवेट कंपनी को लोन दे सकते हैं जिसमें हमारा डायरेक्टर, हमारे कंपनी का कॉमन डायरेक्टर वहाँ पे है या मेंबर सेम है, हम लोग बोल सकते हैं। सपोज दैट हमारे कंपनी में जो डायरेक्टर है या कोई शेयर होल्डर्स हैं, जो हमारे कंपनी में शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स है वही सेम शेयर होल्डर्स या फिर डायरेक्टर उस प्राइवेट कंपनी में है, तो इस केस में अलाउड है। सेकेंड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी कॉरपोरेट को दे सकते हैं। बॉडी कॉरपोरेट मीन्स व्हाट? बॉडी कॉरपोरेट मीन्स हमारा आ जाता है प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन, जितने भी सेपरेट एंटिटी हैं वो सारे इंक्लूसिव हो जाते हैं इसमें। तो ऐसे बॉडी कॉरपोरेट को लोन दे सकते हैं जब हमारा डायरेक्टर, एक दो या बहुत सारे हमारे कंपनी के डायरेक्टर मिलके दे आर होल्डिंग टुगेदर 25% का वोटिंग पावर या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर होल्ड करते हैं उस बोरोइंग कंपनी में। बोरोइंग कंपनी का कहने का मतलब है उस बॉडी कॉरपोरेट में। इन दैट केस इट इज़ ऑल्सो अलाउड। हमारा अगर हमारी कंपनी का डायरेक्टर एक या एक से ज़्यादा मिल के होल्ड करते हैं 25% ऑफ द वोटिंग पावर इन दैट बोरोइंग कंपनी, इन दैट केस इट इज़ अलाउड। थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है ऐसे बॉडी कॉरपोरेट को दे सकते हैं जिसमें हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डायरेक्शन दे रहा है उस कंपनी को कि ऐसे ऐसे आप काम करो। एंड इन अदर वे वी कैन से दैट कि ऐसे बॉडी कॉरपोरेट को दे सकते हैं इन विच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम टू एक्ट ऑन द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ लेंडिंग कंपनी। सो उस कंपनी का अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर जितने भी कंपनी का वर्क हो रहा है एज पर द डायरेक्शन ऑफ आवर कंपनी, तो उस केस में जो है उस कंपनी को अपने लोन दे सकते हैं। वो कंपनी जो है, इन सिंपल वे वी कैन से दैट वो कंपनी जो है हमारे कंपनी के इशारों पे काम कर रहा हो। इन दैट केस इट इज़ अलाउड। सेक्शन 185 सबसेक्शन 2 अलाउड दीज 3 टाइप ऑफ criteria for taking the loan, guarantee and securities। बट कंडीशन क्या फुलफिल करना होगा? इन तीनों केस में जो है एक कंडीशन, जो दो कंडीशन दिया हुआ है दैट शुड बी फुलफिल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल रिजोल्यूशन, दैट इज 75% ऑफ द कंसेंट ऑफ द मेंबर इज रिक्वायर्ड टू obtained in general meeting for obtaining the loan and for providing the loan, guarantee and security to these specified persons। And apart from that it must be clear in mind that that amount should be utilized for the प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़। आप जिसको भी लोन दे रहे हो ना, वो एक चीज़ आप क्लियर कर लेना कि दैट पर्सन शुड यूटिलाइज these loan amounts for the principal business activities। So these are the two conditions that is provided as per the subsection 2 of section 185 of the Companies Act। So in simple way we can say that section 185 subsection 2 states about the granting of loans, guarantee and security, but subject to the fulfillment of certain conditions। सेक्शन 185 सबसेक्शन 3 स्टेट्स अबाउट एग्जेम्पशन। ये जो है ना एग्जेम्पशन का बात कर रहा है कि एज़ पर सबसेक्शन 3 के हिसाब से आपको कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 को। किनको नहीं करना पड़ेगा? यहाँ पे सबसेक्शन 3 में मेंशन्ड है देयर इज़ सम स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़ टू whom it is not required to fulfill the criteria of subsection 1 and subsection 2। बट ये भी है जो subject to some conditions, there is some conditions given regarding that। So who are those? So first of all is a loan to managing director or whole time director। Yes, company can provide loan to managing director or whole time director but subject to certain condition। यहाँ भी condition बोला गया है कि कंपनी तभी प्रोवाइड करेगा जब ये सर्विस जो है ना ऑल भी जितने भी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ है सबके लिए है।
इफ़ सर्विस इज़ एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़, या फिर जो ये कोई स्कीम के थ्रू अप्रूव कराया गया, ये कोई स्कीम अप्रूव्ड हुआ है बाय वे ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के इस स्कीम को अप्रूव कराया गया है, मेनली फॉर द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। तो ये दो क्राइटेरिया दिया गया है, अगर ये फुलफिल होते हैं देन यस, इस केस में जो है ना अपने को कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जो भी सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में बोला गया है। हम लोग लोन दे सकते हैं इन लोगों को, मैनेजिंग डायरेक्टर को या फिर होल टाइम डायरेक्टर को। सेकेंड क्राइटेरिया इज गिवन रिगार्डिंग द लेंडिंग कंपनी इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसका काम ही है, जिस कंपनी का काम ही है कि लोन प्रोवाइड करना, गारंटी देना, सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करना। सो जिस कंपनी का मेन बिजनेस है, हुज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज प्रोवाइडिंग लोन एंड गारंटी एंड सिक्योरिटीज, इन सब इस टाइप की कंपनी के लिए ना सेक्शन 185 का सबसेक्शन 1 एंड 2 कंप्लाई करने का दरकार नहीं है, उन सब कंपनियों के लिए छूट है। बट दिस इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। उन कंपनियों को क्या करना होगा, आप लोन तो दे रहे हो बट आप लोन जो दे रहे हो उसके लिए आप जो इंटरेस्ट चार्ज करोगे ना, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, जो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो येल्ड वैल्यू है ना, उसके हिसाब से आपको चार्ज करना पड़ेगा। जितना भी 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या 10 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट येल्ड जो दिया हुआ है, कम से कम उतना इंटरेस्ट चार्ज करोगे या फिर उससे ज़्यादा चार्ज करोगे, उससे कम नहीं होना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन फॉर दीज टाइप ऑफ लेंडिंग कंपनीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, थर्ड क्राइटेरिया बोला है कि आप होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी को जो है ना लोन एंड गारंटी दे सकते हो। होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी को, अगर हमारा कंपनी जो है लोन देना चाहता है कैसे कंपनी को, जो कि पूरी जिसका 100%, जिसके ऊपर 100% कंट्रोल है, होल्ली ओन्ड है, वो कंपनी होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी है, तो उस केस में जो है ना लोन दे सकता है कंपनी, गारंटी भी प्रोवाइड कर सकता है एंड सिक्योरिटी कैन ऑल्सो इन दिस रिगार्ड। सो बट दैट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू सम कंडीशन कि वो जो लोन अमाउंट है दैट्स मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाय द सब्सिडियरी कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़। प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के अलावा आपको किसी और चीज़ में ये लोन अमाउंट यूटिलाइज नहीं करना है। फोर्थ क्राइटेरिया बोल रहा है कि यस कंपनी जो है उनको भी गारंटी एंड सिक्योरिटी दे सकता है। यहाँ पे मैंने लोन का बात नहीं किया है, मैंने यहाँ पे लोन के बारे में नहीं बोला है, मैंने बोला है कि कंपनी जो है गारंटी एंड सिक्योरिटी दे सकता है। गारंटी एंड सिक्योरिटी बाय द होल्डिंग कंपनी, एनी गारंटी गिवन और सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय अ होल्डिंग कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन मेड बाय एनी बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट्स सब्सिडियरी कंपनी। यहाँ पे होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी के बारे में बात नहीं हो रहा है, होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी के अलावा भी जो नॉर्मल होल्डिंग सब्सिडियरी का जो क्राइटेरिया होता है उसके बारे में, नॉर्मल सब्सिडियरी कंपनी के बारे में बोला जा रहा है कि उस केस में क्या होगा ना कि कंपनी जो है वैसे सब्सिडियरी कंपनी को अफकोर्स लोन दे सकता है, लोन नहीं दे सकता है अफकोर्स, वैसे कंपनी के लिए गारंटी ले सकता है। अगर मान लो कोई बैंक एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन वैसे सब्सिडियरी कंपनी को लोन दे रहा है, तो उसके लोन के बिहाफ में जो गारंटी एंड सिक्योरिटी जो है ना वो यस कंपनी दे सकता है, बट उसमें भी एक कंडीशन है कि दैट लोन मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाय सच सब्सिडियरी कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़। मेनली प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी नॉट अलाउड। So section 185 subsection 3, in a simple way we can say that this is why it is introduced. The main reason behind the introduction of section 185 subsection 3, it states that कि यस जो कंपनी है वो लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी दे सकता है, इन स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़ को दे सकता है, और बट सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, एंड इनको कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 को। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, the next subsection is subsection 4. See, we have already read about, we have already understood about subsection 1, subsection 2, subsection 3.
Subsection 1 was talking about prohibition, 2 was talking about some relaxation, and 3 was talking about exemption. बट यहाँ 4 में जो बोला जा रहा है that is talking about the punishment and the penal provision for contravention of the above mentioned subsections. अगर जो भी सबसेक्शंस में पहले के सबसेक्शंस में जो भी बातें बोली गई हैं, अगर उस चीज़ को कोई कंपनी फॉलो नहीं करता है एंड दैट कंपनी इज़ ब्रीचिंग दैट लॉ, in that case this section has came and it is talking about the penal provision in that respect. So इस केस में अगर कंपनी कंट्रावेन करता है तो उस केस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस में क्या होगा, कंपनी पे जो है फाइन लगेगा, दैट विल बी मिनिमम 5 लाख बट दैट में एक्सटेंड टू मैक्सिमम 25 लाख. तो आप सोच सकते हैं कंपनी को कम से कम अगर वो कॉन्ट्रावेन कर रहा है ये सबसेक्शंस जितने भी बोले गए थे, तो उस कंपनी को कम से कम 5 लाख तो देना ही पड़ेगा एंड मैक्सिमम 25 लाख तक देना पड़ सकता है. इसके अलावा जितने भी ऑफिसर है, फॉर एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट, जो भी इन सब चीज़ में इन्वॉल्व हुए थे उस वक्त, उनके लिए भी एक प्रोविज़न्स दिया है, वो है उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ, जो कि कम से कम 6 महीना, कम से कम नहीं बोला गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना तक हो सकता है फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ. या फिर फ़ाइन देना पड़ सकता है आपको मिनिमम 5 लाख के लिए, जितने भी ऑफिसर है पर ऑफिसर 5 लाख एंड मैक्सिमम 25 लाख. तो इसमें क्राइटेरिया में बोला गया है और बोला गया है या तो जेल हो सकता है या तो फ़ाइन दे दो. इसके अलावा इतना ही नहीं, जो बोरवर लोन लिया था, द पर्सन हु हैज़ टेकन द लोन, उन पे भी है ये पेनल प्रोविज़न, उनके लिए भी ये क्राइटेरिया आया है कि जिन्होंने लिया है उनके लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ, या फिर उनको फ़ाइन देना पड़ सकता है कम से कम 5 लाख एंड मैक्सिमम टू 25 लाख, या फिर दोनों ही हो सकता है, फ़ाइन एंड इम्प्रिजनमेंट. तो ये तो और भी ज़्यादा बहुत बड़ी बात हो गई कि बोरवर को जो है या तो इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या तो फ़ाइन देना पड़ सकता है या दोनों ही हो सकता है. अगर बहुत ही ज़्यादा केस सीवियर हुआ तो इन दैट केस दोनों ही करना पड़ सकता है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि कितना ज़्यादा ये सेक्शन स्ट्रिक्ट है, एंड इफ़ एनी कंपनी इज़ नॉट कंप्लाइंग द प्रोविज़न ऑफ दीज सेक्शंस देन वो कंपनी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, नॉट ओनली टू द कंपनी बट ऑल्सो टू द ऑफिसर हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट, एंड नॉट ओनली टू द ऑफिसर बट ऑल्सो टू द बोरोवर हु हैज़ टेकन द लोन. सो अपने बोल सकते हैं कि इस जो भी सेक्शन है, सेक्शन 185 को अपने को अच्छे से फुलफ़िल करना होगा. जब भी हम लोग बैलेंस शीट अकाउंट्स फाइनलाइज कर रहे हैं तो उस या फिर साल भर में जो भी हम ट्रांजेक्शन्स एंड जो भी बिज़नेस कंडक्ट कर रहे हैं उसमें हम लोगों को इन बातों का ध्यान रखना होगा. द कंपनी मस्ट एश्योर दैट द कंपनी इज़ नॉट ब्रीचिंग इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू सेक्शन 185. Thus friends, we can say that Section 185 framed in such a way to safeguard the interest of shareholder by imposing some prohibition in respect of loan and guarantee or security that is given by the company. While on the other side, it is also provides some relaxation and exemption for ease of doing business. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक तरफ तो प्रोहिबिशन लगा रहा है और दूसरी तरफ जो है रिलैक्सेशन दे रहा है. इसके पीछे भी दो रीज़न है. पहला, ये एक प्रोहिबिशन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि एज वी नो दैट लॉट्स ऑफ मनी आर इन्वेस्टेड by the shareholders in a company, so for safeguarding their interest it is essential to impose some restriction. क्यों, अगर वो कंपनी पे रिस्ट्रिक्शंस ना लगे तो हो सकता है ना कि जो कंपनी जो है अपने डायरेक्टर को लोन दे दे, बट क्यों देगा, वो पैसा तो शेयर होल्डर्स का है ना. सो फॉर सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू रिस्ट्रिक्ट सम और रिस्ट्रिक्ट सम प्रोविजंस ऑन द कंपनीज टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट. इसलिए इस केस में क्या हुआ है कि ये सेक्शन 185 आया है कि कुछ प्रोहिबिशन लगाओ ताकि शेयर होल्डर्स का पैसा जो है
वो बर्बाद ना हो, डूबे ना। और दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं किया गया है सेक्शन 185 में कि बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है। आपको बहुत थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन में मिला है विद सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया। आप फुलफ़िल करो एंड आपको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया गया है कंपनियों को, ताकि वो ईज़िली जो बिज़नेस को है कैरी ऑन कर सके। उनके लिए भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया है कि कंपनी को बिज़नेस कैरी ऑन करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाए। So this was all about section 185. Friends, I hope you like this video, and if you like this video then please like, share and subscribe my video for the further updation and for the further uploading of videos. Thank you.